ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی، لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی۔ اللہ توجہ ہے تو کہاں جا رہے ہیں کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب؟ اچھا ہوگی، اچھا اچھا، ضرورت تگڑی والی ہے۔ چلو خیر ہوئی۔ باز تو اتنا بڑا سنیچر ہے، 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا صحیح بتا۔ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ مگر پیارے سنو پاک رات، لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کماتے بہت ہیں رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک، اور لے دیکھے اماں بھی ناپاک، بھیا بھی ناپاک، اور تاؤ بھی ناپاک۔ کبھی موقع ملا تو مغرب کی پڑھ لی، ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، سمجھاؤ گے؟ اللہ برکت، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اتنی دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو لگے مطلب میرے بتانے کا مطلب یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تو؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا، اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے۔ اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں، میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے، تھوڑی بہت کڑیا مڑیا تھی وہ میاں لے گیا۔ بولے 1100 روپے لگیں گے، 2-3 پہ چکر لگا دیے، آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے۔ تم بالکل پٹ، ہر طرف سے تمہیں ہی لوٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے۔ لیکن ذرا دیکھو پیار، دیکھو غور کرو، آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 کوئنٹل نہیں،
हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पालोगे। बेशक हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी बात गलत हो सकती आपकी, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं, नबी की बात गलत, मगर अमल करोगे इंशाअल्लाह। अब सुनो थोड़ा सा पसे मंजर बना दूं, बता दूं अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। जरा सुनने की बात है प्यारो, जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले जाकर के झाड़ते पोंछते साफ करते। कच्ची मस्जिदें थी, छप्पर पड़े हुए थे, तिनके गिर जाते थे, धूल वगैरह आ जाती थी, मगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे से पहले पूरी मस्जिद को झाड़ करके पोंछ के साफ करते थे, झाड़ू मारते थे। एक दिन किसी सहाबी ने पूछ लिया था अबू बकर सिद्दीक कैसे करते हैं? अब जरा मेरे नबी का बयान सुनो और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, तुम्हें आज ऐसा ऐसा पैगाम मिलेगा, अगर अमल करोगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर कोई भी जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा पोंछेगा साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, आका फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीबुर रहमान साहिब, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। वो तो थोड़ा सा और बढ़ा देते ना तो हजरत भी अटक जाते, क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा। एक जगह ना ऐलान हो रहा था, ऐलान बोले पीर, वो जो लगाते ना जीप पे या रिक्शे पे, तो लिख दिया था बच्चा ऐलान करता फिर रहता, सब लोग खड़े सुने, बोले कौन कौन आ रहे हैं? बोले पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना किबला काबा मुफ्ती। अभी नाम आए नहीं तो रिक्शा बाहर निकल गया गाँव के। बोले यार आ कौन रहा है, ये तो पता ही नहीं चला आ कौन रहा है? तो नाम तो खैर तुम्हें मेरा मालूम ही होगा। चलिए माशाअल्लाह। समझ गए बात मेरी? ये हजरत की मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद झाड़े पोंछे साफ करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? अगर सदर साहब होते ना मस्जिद के, सेक्रेटरी साहब, तो जुमे के दिन या जब मौका मिलता है तब जाते हैं और बांधे पीछे हाथ ऐसे करके और देखा जाला, बोले हाँ भाई इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहे? इमाम पे जमाया, अच्छा इमाम ये जाला साफ करेगा तेरा। मोहसिन साहब नाली बड़ी गंदी हो रही है, अच्छा तुम सदर सेक्रेटरी हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा ऊंचा होगा। जरा सोचने की बात है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इतनी जमाता है, इतनी जमाता ओहदा ना चाहे भले इमाम चला जाए। एक गांव में तो बोले हजरत 3 महीने से टेस्ट चल रहा। मैंने कहा टेस्ट क्या अचार उचार था? कि बोले नहीं, हर जुमे को नया इमाम बुलाते हैं और उसको रखते ही नहीं, तकरीर कराई और भेज दिया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो। न तनख्वाह देनी पड़ रही और रोजाना नया चकने मिल गया, मगर इमाम भी इतने हैं 2-2 3-3 आ जाए। समझे? एक पता चल जाए कि घट नहीं रहा तो 2-3 आ जाते हैं। इसीलिए मैंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मदरसों में इसके साथ साथ, समझ में आ रही है, सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, मदरसा और मस्जिद। इसके साथ साथ मालूम है अगर उसको हुनर भी सिखा दिया जाए
علم طب سکھا دیا جائے، یہ سب یہیں سے ہے، اس کو تجارت کے اصول بتا دیے جائیں، تو اگر وہ جو تجارت کرے گا نا اور وہ نماز پڑھائے گا تو پھر وہ صدر اور سیکریٹری سے ڈر کے نماز نہیں پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا۔ اس لیے تو کچھ مولانا لوگ میری تقریر اس کے خلاف ہو گئے تو بولے یہ تو مدرسے کے بچوں کو اکسا رہے ہیں، مطلب ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آج لاک ڈاؤن لگا تو کیا دیکھا تم نے؟ یہی دیکھا تھا۔ تم خود بتاؤ، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، جب آگے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ذہن دیکھیو، ذہن تم کہو گے کہ ہاں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے تقریر میں لیکن پھر آ گئی تو بتا رہے ہوں۔ تمہاری کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو کیا تم اسے انعام دو گے؟ کیا نہیں، بولو۔ تمہاری کوئی موٹر سائیکل لے جائے، بچوں نہیں لے کے جائے گا، بیٹھے رہو۔ اگر موٹر سائیکل لے جائے تو کیا انعام دو گے؟ چور کو کیا انعام دو گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آؤ چور صاحب بتاؤ، اسے کھیر کھلاؤ گے، اسے مرغا کھلاؤ گے، اسے پیسے دو گے؟ مگر دماغ دیکھو کتنا الٹا ہو گیا۔ شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولو نا، شادی میں جوتی نہیں چری تو چور کو تم نے پکڑوایا تھانے میں؟ آتے ثابت پلٹ گئے، پوری برات پٹتی، چھوٹا سالہ یا سالی چرا کے لے گئی تو تم نے فون کیا کہ صاحب چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، اور الٹا انعام دے رہا، انعام۔ صحیح بات ہے۔ اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چورنی صاحب بولو، چھوٹی بچی سالی یا سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10۔ اتنے میں 2-3 بوڑھے آگئے بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ۔ بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ، نپٹ گیا، 9 پہ نپٹاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو۔ ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو، چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں۔ مگر اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا۔ بولے نہیں، 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، غم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ دے دیے 10۔ اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہا بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی۔ تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ۔ بولو، فون کیا؟ نہیں کیا نا، وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10۔ اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کا نکاح گیا، نکاح پڑھایا امام صاحب نے۔ بولے تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10، بس ابا کے چل پڑے 10۔ ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو، کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو، جاؤ۔ ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم۔ تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، بھانڈوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے۔ اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو۔ اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے،
अगर शरअन इमाम की पकड़ नहीं है, गलती नहीं है, और दुनियावी एतबार से शरीयत में तुमने अपनी तबीयत मिलाई और इमाम को हटा दिया, इमाम से बगावत करते रहे, बगावत करते करते अगर मर जाओ तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल। अब कोई बूढ़ा निकल के नहीं आता, अब कोई भी निकल के नहीं आता, अब कोई नहीं बोलता किसका है, मगर प्यारे जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो, इसीलिए दीन और इस्लाम पीछे होता जा रहा है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, वहां पर मोटी मोटी फीस दे देते हो, ड्रेस भी बनता है, कोर्स भी आता है, सब कुछ होता है, मगर जरा गौर करो, जो पढ़ करके 8 साल मस्जिद का इमाम बना, वो अपने बच्चों को 10,000 में, 8,000 में, 6,000 में कैसे पालेगा? अब बताओ जरा कौन है जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? इसलिए तुम्हें अपना ज़हन बदलना होगा। नौजवानों, दिल्ली में काम करने वालों, बंबई में काम करने वालों, मुझे पता चला जलसे की वजह से तुम आए हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, मगर प्यारो आज से ये अहद कर लेना, उलमा की भी इज्जत करेंगे, इमामों की भी इज्जत करेंगे और उन्हें हर एतबार से नवाजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वाह क्या बात, हर एतबार से नवाजेंगे। ये अभी नाम है ना इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी इस्लाहे मुआशरा का मतलब मैं बता दूं तुम्हें ताकि पता चल जाए। सुनो, इस्लाहे मुआशरा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो समाज में, जो माशरे में बुराइयां हैं उनको खत्म करना और उनकी जगह अच्छाइयां डालना। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने देहाती लफ्जों में तर्जमा कर दिया। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? बुराइयों की इस्लाह करना, उनको खत्म करना और अच्छाइयों की तरफ आपको लगाना। बेशक। अब देख लो, यही से शुरू होता हूं थोड़ा सा, बेशक तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। बाज को ना इतना हसद है हजरत, इतना हसद है, पेट में बबूले दे रही है, बबूले, इतना हसद। ओ बेटा, बच्चों, इतना हसद। अगर किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए ना, रिश्ता अच्छा, ये जो 2-4 भाई बोल रहे हैं वो उससे टिके हुए जो हैं, उससे जो टिके हुए हैं, पिंडाल से जो टिके हुए हैं, पिंडाल से। ओ पिंडाल वालों, आगे बात मत करो, अगर बात करोगे तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो देखो एक भाई कितना मजा ले रहा है, टिका हुआ रुमाल वाला भाई, तो देख ही रहे अल्लाह का बंदा, कहां देख रहा हो? इधर देखो ना मेरी तरफ। अब सरक रहे, तवज्जो रखो। ओ बेटी बैठो। अगर किसी की ना बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटी का, तो बाज ना इतनी बड़ी डायन है, अल्लाह माफ फरमाए हजरत। तवज्जो, बिल्कुल सीधी भोली, जैसे कुछ नहीं जानती है, और इतनी खतरनाक है, मोहल्ले में लड़ाई पे लड़ाई करा रही है, मोहल्ले में लड़ाई। इतनी सीधी भोली बन के जाएगी, बोली पान की कतरिया खाना है, पान की कतरिया। पहुंच गई। अब इसने निकाल दी बात, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 3 बेटी 1 बेटा। अच्छा, 1 बेटा, बड़ा कौन है? कहा बेटा। उसका रिश्ता हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ हुआ? मान लो मकसूदपुर में।
जबकि पता सब कुछ है इसे, मगर कैंची लेके गई ये रिश्ता काट नहीं। अब पहुंची, बोले रिश्ता हो गया, बोली हाँ, बोली कहाँ हुआ, बोले मकसूद, अच्छा वहां हुआ, किस जगह घर है, कहा वो मस्जिद के सामने ना, अच्छा वो 2 मंजिल जो मकान है, हाँ जिनकी गोरे रंग की लड़की है वही तो, कहा वही, अच्छा उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई है, बस। बोली उसे दौरे पड़ते थे, ठीक हो गई है, अब्बा बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत, बोली वैसे रिश्ता अच्छा कर लो, खाक कर लो, जब तूने रेड़ पहले ही मार दी थी। एक तो लड़के वाले ना, लड़के वाले जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, भेड़े, बकरियां बाजार में बिकती थी ना, बाजार में, अब लड़के वाले अपने लड़कों को शादी के नाम पे बेच रहे हैं। कोई 3 लाख मंगनी में मांग रहा, कोई 4 लाख मंगनी में मांग रहा, ऐसे चल रहा, ऐसे टेढ़ा, मगर बैठेगा बुलेट पे ही। इस टेढ़े से ये जो तेरा थूक तो निकल लिया, मगर चलेगा। अगर बुलेट की धुक धुक सुन लेना, इसका कलेजा फट जाएगा, मगर बैठेगा बुलेट पे। इसे बुलेट मैंने तकरीरों में कहा कि कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, इसलिए जुमला बदल रहा हूं। गेगला गेगला गेगला, वो भी कह रहा है 4 पहियों की जाए, इतना मोटा लठ हो और ये गेगले की कमर हो और 3 एकड़ का खेत हो, रपटा रपटा के इतना मारा जाए इस गेगले को, सारी बुलेट निकल जाएगी इसकी। जरा सोचने की तो बात देखो, अल्लाह के बंदे, ओ बेटा, ओ हजरत, लड़की अगर अच्छी लाओगे, पर्दे वाली लाओगे, अच्छे माहौल वाली लाओगे, कुरान पढ़ने वाली लाओगे, हया वाली लाओगे, शर्म वाली लाओगे, दीनदार लाओगे, जहेज लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी तो तुम्हारे घर में बरकतें होंगी। हजरत जहां जाते हैं राजस्थान में, कोटा में, एक साहब आए, उन्हें पता चला ना मेरे बारे में, उन्होंने मोबाइल वाले सुना होगा कि सैयद साहब बड़ी दूर से नोट की ऐसे पत्ती बना के 500 के नोट की, और बोले हुजूर हुजूर बहुत दिनों से इंतजार में था, बड़े दिनों से, रो दिया वो बूढ़ा। मैंने कहा क्या बात है, मुझे भी तरस आ गया। बोले एक ही बेटा और बहू मुझे ना कुत्ते से बुरा समझती है। अल्लाह। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है बुड्ढे को बैठने की तमीज नहीं है। लो हमें बुड्ढों को तमीज नहीं। खाना अगर मांग लो तो बुड्ढे का लीवर कितना हाई, अगर थोड़ा सा सीधा चालू बोला बुड्ढा तो चौकड़ी भर रहा। अगर मैं जल्दी सो के उठ जाऊं तो बोले बुड्ढा पता नहीं हरी मिर्च खाया क्या। हर तरफ से बुड्ढा बुड्ढा, बहू जरा भी नहीं सुनती है, दुआ कर देना दुआ। घर में से निकाले दे रही और मैं अपने बच्चे को छोड़ना। एक जो बराबर में सुन रहे थे ना, बोले हजरत पीछे कहूंगा तो गीबत है, सामने कहूंगा भले ही मुझे मार दे। मैंने कहा क्या? बोले हजरत इनके लिए दुआ मत करना। अल्लाह। मैंने कहा क्यों भाई, तुम कौन होते हो दुआ को रोकने वाले? बात बताओ दुआ क्यों नहीं करना? वो कहने लगा हजरत इस बुड्ढे ने बोलोरो के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता छोड़ा है। चौथी जगह इसे बोलोरो मिली, बुड्ढे को घड़ी और सोने की चैन मिली, तो अब बहू कैसे रोटी देगी? मैंने कहा तुमने सही कहा, इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। अब बताओ बूढ़े मियां बोल, जो 3 लड़कियों का रिश्ता तूने रिजेक्ट कर दिया, उनमें से 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनका अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ। मैंने कहा तुझे नसीहत मिलनी चाहिए, अगर तुम दौलत लोगे,
दौलत लोगे, रुपया लोगे, पैसा लोगे तो ऐसे। और अगर गरीब लड़की से शादी करोगे तो वो अब्बा अब्बा तुम्हें कह के रोटी देगी, अम्मा अम्मा कह करके सास को रोटी देगी। अगर शौहर कहे चल अलग चल दिल्ली चल तो जाने से इनकार कर देगी, कहेगी मैं अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं जी। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। समझे? कुरान को सब मानते सब। तो मैं कुरान से एक आयत ऐसी उठाता हूं कि यार आज कलेजे जो है ना मुंह को आ जाए। तुम में ही नहीं, वो बुराई हम में भी आ गया, हम लोगों में भी आ गया। हमसे मुराद मौलाना लोगों में। बताऊं वो बुराई क्या है? कोई भैंस मरी हुई हो, तवज्जो रखो बच्चों, तो वो मर गई, वो मुर्दा हो गई, मुर्दार हो गई। क्या हो गई बोलो बेटा? मुर्दार हो गई। मुसलमान के लिए उसका खाना जायज नहीं है। या खा सकता कोई? नहीं खा सकता। अच्छा चलो, अगर वैसे ही कोई मुर्दार चीज है उसको भी मुसलमान का खाना जायज नहीं। और इंसान मुअज़्ज़म चीज है, मुकर्रम चीज है, इसका गोश्त भी खाना जायज नहीं। तवज्जो रखना। जबकि मुसलमान पाक है, समझ रहे, मगर मुअज़्ज़म मुकर्रम है, इसका गोश्त खाना जायज नहीं। कोई भाई जैसे नागालैंड में सुना है, देखा नहीं है, किसी का तबीयत खराब हो या कुछ हो तो उसको काट के खा लेते। सुना होगा तुमने, सुनी हुई बात है, इसको चलो खत्म करो। कोई भाई इतना बड़ा दरिंदा जहन होगा, इतना खराब, इतना बुरा होगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। बोलो तुम्हारी इस बस्ती का क्या नाम है? मन। अच्छा, मनकुआ मकसूदपुर जी। कोई भी मनकुआ मकसूदपुर में इतने बूढ़े बुजुर्ग, किसी ने अपने भाई का आज तक गोश्त खाते हुए देखा? नहीं। किसी औरत ने गोश्त खाया? मर जाएगा मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं। कितने ही बड़ा जालिम हो, जाबिर हो, डकैत हो, शराबी हो, जुआरी हो, अल्लाह हम सबको इन चीजें हिदायत नसीब फरमाए। तमाम खुराफाते हो मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाए। या खा सकता? नहीं। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। अगर कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ूं कुरान जी? पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान की आयत है और कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, गलत नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब गिरबान में झांको सब अल्लाह और मौलवी लोगों को, जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, रोडों पर बुराई गीबत की जा रही है, चौपालों पर गीबत की जा रही है, कोनों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर गीबतें की जा रही है, शादियों तो गीबतें की जा रही है, किसी की मौत में जाए तो गीबतें की जा रही है, किसी के तीजे में जाए तो 4 लोग इकट्ठे हुए, हत्ता के नमाज पढ़ के आए, मस्जिद से उतरे, चौर पे चौर
तो वहां पर गीबत नमाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, किसी को भी लेकर के बुराई कर लेते हैं। याद रखो प्यारे, ये किसी मौलाना की कहानी नहीं है, ये किसी आलिम की ज़बान, किसी आलिम का कौल नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह। अब जरा झांको गिरबानी, कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं। यार कुरान की बात गलत हो सकती? सही बता रहा हूं, तुम लोग बड़ी दूर से आओ। अगर आज तुम मुफ्ती साहब क़िबला, पीर साहब का क़िबला हाथ में हाथ देकर के बैत तो होगे, मगर इनकी मौजूदगी में आज अगर तौबा कर लोगे, पता नहीं किसके जरिए ये जलसा कबूल हो जाए। हाथ उठा के तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह। हाथ बात सब लोग हाथ बोलो, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। उलमा इसलिए उठा ले, इन्हीं के सदक़े में हम सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। एक चीज की इस्लाह हुई माशरे में से, ये हुई इस्लाह है माशरा। आप जरा सुनो, तंबीहुल गाफिलीन एक किताब, ये किताब पढ़ना जरूर। हजरत की कई किताबें, हजरत अमीर मुआविया पे अभी मैं देख रहा था, बड़ी प्यारी, जरूर पढ़ना उसको। इमाम आजम अबू हनीफा की मुख्तसर सवाने हैं, वो भी पढ़ना, तवज्जो रखो। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, ये सुनने की बात है बेटा। दो औरतें, कितनी औरतें बोलो, आका की बारगाह में आई और अपने मसाइल पेश करने लगी। अपने मसाइल जैसे ही पेश किए, मेरे नबी से बातें करने लगी, अपने मसाइल पूछने लगी। मेरी बहनें सुन ले, जो चुगली करती हैं, गीबत करती हैं, बुराई करती हैं, इतनी बुराई करती हैं, इतनी बुराई करती हैं कि चेहरे तक काले कर लेती हैं। लेकिन जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में जब गीबत करने, जब बात करने आई, मसला पूछने आई, तो नबी ने फरमाया, उनको मसला बताने के बाद फरमाया, क्या तुम दोनों गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगी, ऐ आका कौन, ऐ आका। वो कहने, नबी ने फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खाएगी? नबी ने फरमाया, खा कर क्या आई हो? दोनों कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त नहीं खाया, बल्कि आज हमने हलाल गोश्त, तो हलाल गोश्त, आज हमने कुछ भी नहीं खाया, खाली सब्जी से खा के आए हैं। मेरे नबी जलाल में आकर के खड़े हो गए और कहा, दोनों खड़ी हो जाओ, उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो। जैसे ही उन दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब कह की है, तो खुदा की कसम गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीखें निकल गई और कहने लगी, आका हमारी माँ आप पर कुर्बान, हमारे बाप आप पर कुर्बान, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहाँ से आया? मेरे नबी फरमाने लगे, मुझे मालूम है गोश्त नहीं खाया, मगर सुनो, जब तुम घर से चली, आपस में मिल गई, तो तीसरी औरत की बुराई करती हुई रास्ते पर आई हो या नहीं आई हो? अगर मना करोगी तो नाम बता दूंगा। दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हुआ है। नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई औरत गीबत करेगी?
कोई और चुगली करेगी? मेरी तरफ तवज्जो रखो। बेशक। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, एक गरीब लड़की की जिंदगी बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सुना दो। एक गरीब लड़की, यार मैं इसे बहुत तकरीरों में कहता हूँ हजरत जी, बहुत बोलता हूँ, क्योंकि मेरे दिल को ये बात छू जाती है। वो गरीब लड़की, उसके बाप ने बड़े प्यार से पाला और उसकी माँ ने भी बड़े प्यार से पाला। बेशक। उससे पहले अगर इजाजत हो तो बिल्कुल सामने की रियल बात बता दूं। बताइए। इनमें से कितने लड़के ऐसे होंगे जो मेरे पास इधर जसपुर में है नहीं पढ़े हैं, तो जब की बात है हजरत, जी, बुलंदशहर की बात है। एक शख्स ऐसा था, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था, अल्लाह, पैसे वाला था, दौलत वाला था। जो आजकल माहौल चल रहे ना, लड़के लड़की मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं और अब्बा इंतजार देख रही है कि आसमान से खाना उतरेगा, और उतर रही है लानत। समझे? अब्बा सोचता कहते मेरे घर में सब नेक है, हर बेटी पे मोबाइल अपना अपना लगा। अल्लाह। तो ऐसे ही उसने अपने प्यार से शादी कर ली। दिल्ली की लड़की, जींस पैंट पहनने वाली, टॉप पहनने वाली और बड़े बड़े हिल पहनने वाली, और इनसे बात करने लगी। इनकी हो गई शादी, तो इनसे ही थोड़ी कर रही थी, दो चार उसके कंडक्टर ड्राइवर और भी घूम रहे थे। समझ गए होगा कंडक्टर ड्राइवर, समझे? वो और भी घूम रहे थे, मगर बड़े खुश थे। होटलों में खाना चल रहा है, चाउमीन चल रही है, बर्गर चल रहा है, मोमोज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो बड़ी मजाक बनाया करता था, अरे अरे यार ये मौलाना लोग तो दीनी बातें, इस्लामी बातें, एंजॉय करो अपनी जिंदगी में, एंजॉय। अकेला था हजरत, अकेला, और प्लॉट थे उसके बहुत सारे, गाड़ी मालदार था पूरे गांव में। वो इमाम को भी कुछ कह दिया करता था, सबको कह दिया करता था। अल्लाह। एक दिन उसने इमाम हुसैन पाक को उंगली उठा दी। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। करबला का जिक्र चल रहा था, इमाम हुसैन पाक, जब उसने कुछ बोल दिया, याद रखो अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है, लेकिन नबी की औलाद के बारे में बोला जाता है तो उसे दुनिया पे भी सजा देता है। अल्लाह। उसके मुंह में कैंसर हो गया। अल्लाह। क्या हो गया? कैंसर हो गया। उसे फिर भी परवाह नहीं, क्योंकि वो पैसे वाला था, दौलत वाला। दिल्ली चला गया। अब जब दिल्ली गया तो दिल्ली डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले आखिरी स्टेज पे, एक ही दिन में आखिरी स्टेज पे। वो जो थी ना उनकी, वो मैना तोती, वो तो किसी कंडक्टर को, ड्राइवर को लेकर निकल गई। अल्लाह। मालिक साहब रह गए। अल्लाह। समझे? उसने तो अपना सूटकेस और हैंड बैग उठाया, सोना चांदी जो था, अब ये रह गया अकेला। समझे? बजाय इसको तलाक देनी थी, वो तलाक दे के चली गई। अब कर ले प्यार की शादी। बाज बाज लड़के फुक्के ऐसे हैं, फुक्के फुका हुआ ये बेचारा, न दम न दरूद, गाल गड्ढे में बैठे हैं, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े जैसे सेके कांटे, कमर खा रही है लचका, घूरे में पड़ा हुआ, मोबाइल पे चैटिंग चल रही है, चैटिंग। समझे? आंखें हो रही है पीली जैसे खून निचोड़ा हुआ, कई बोतलें चढ़ने के लाए थे। अब अम्मा से कह रहे होठ कप कपा रहे, खड़ा हो जाए तो टांगे हिल रही है। अम्मा से कह रहे अम्मा शादी करूंगा अम्मा, वरना चूहे की दवा खा के मर जाओ। एक थप्पड़ मारे, 3 कलवादी का। ऐसे कुछ फुक्के हमारे यहाँ भी हैं इसी गांव में, उन्हें कोई और काम नहीं इन फुक्कों को, इसी गांव में। लेकिन जरा सुनो, वो जो फुक्की भाग गई, अब इसको जब डॉक्टरों ने कह दिया तुम नहीं बचोगे, इसकी कोई दवा नहीं है, उसने उस दौर में बताया मुझे इमाम साहब ने 1,60,000 रुपए तमाम खर्च करके डॉक्टरों की अमेरिका और कहां की उनकी मीटिंग ली। और मीटिंग लेने के बाद उसने जब पूछा तो सारे डॉक्टरों ने चेकअप किए, बार भी चेक होकर क्या है, सबने रिजल्ट यही निकाला, जितने दिनों खाना खा लो पी लो
तो हिंदू डॉक्टर बोला हाँ, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पीर होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो इमाम होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो फकीर होते हैं, एक बुक है जिसका नाम कुरान है, अगर वो पढ़ के फूंक दे तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना नहीं। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन बोला? हिंदू डॉक्टर यार मुसलमान नहीं, हिंदू बोला। अब वो पलटा इधर को, इमाम साहब अब बताओ कोई आदमी, बोले तू तो बड़ी वो करता था, एतराज करता था, जो भी तकरीर करने आए तू तो सब उस पे वो करता था। रोने लगा, इमाम साहब के पांव पकड़ लिए। कारी यसीर थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहा हुजूर वो शख्स जिसके बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा हाँ, कि जिसने इमाम हुसैन पाक के बारे में, तो कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा था ना कि अल्लाह उसको दुनिया में भी सज़ा देगा और आखिरत में भी, तो हुजूर सज़ा मिल गई और ऐसे ऐसे वो आ गया पलट के, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ़ कर देता है। बेशक उससे ये कहो जुमे के दिन भरे मजमे में तू पहले तो तौबा करेगा। बेशक किसी भी सैयद को या किसी भी आले रसूल को या किसी भी आलिम को, किसी भी दीनी और इस्लाम बात की मजाक नहीं उड़ाएगा। और 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और किसी को नहीं सताएगा, आज से ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरता क्या नहीं करता? उसने कहा मैं तैयार हूं। उसने जुमे के दिन जो थी तौबा कर ली भरे मजमे में। अब फिर मुझे फोन लगाया, बोले हुजूर अब क्या करूं? मैंने कहा इससे कहा 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े और इमाम साहब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद 11 मर्तबा पढ़ के दम कर दो, फूंक दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिलीफ देगा। जब वो ऐसे ही करने लगे, उसका यहाँ का बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जख्म खुशक होने लगा, अब तो बड़ा खुश ठीक होने लगा। अब उसने कहा कि सैयद साहब को फोन मिला कि अब तो मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो जो फाख्ता थी ना, वो उड़न खटोला जो दिल्ली से पकड़ के लाया था, जिसे समझ रहा था कि ये कबूतरी है, निकल गई कौवा बना के। आज तक जिसने भी अपनी मर्जी से शादी की, या प्यार की शादी कह लो या भगोड़े की शादी कह लो, 1 साल से ज्यादा चली है? तुम खुद बताओ यार। एक तो समाज में ना तुमने भाग के जो लड़की भाग जाती हैं, कितने पागल हैं ये, और लड़के भी कितने पागल हैं जो भाग भाग के चले जाते। समाज में कभी इज्जत पालेंगे? जब भी कोई फंक्शन होगा उसके खानदान में, तो सब लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे इशारा करेंगे, देखो ये भाग गई थी, ये को उधर वाले कहेंगे ये ले गया था भगा के। ये हर जगह उसकी बेइज्जती। अब वो कितनी नमाजें पढ़े, कितनी परहेजगार बन जाए, मगर उस इज्जत को वापस नहीं ला सकती। अब बच्चे पैदा हो गए, अब जब बच्चे हुए, उसके बच्चों का उसके भाइयों के बच्चों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, छूटते ही गाली मुंह पे क्या मिलेगी? तेरी अम्मा भगोड़िया। बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने, एक थोड़े से मजे की खातिर। यार अगर एक तो उसने माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, कम से कम माँ बाप के कहने से शादी करते हैं। कोई भी माँ बाप चोर भी होगा ना, चोर, तो वो भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, अच्छा ही बना, अच्छा ही बने ये चाहेगा। अब वो कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझे कोई भी नहीं है, रोटी की परेशानी है, मगर जहाँ हजरत कहेंगे वहीं पे मैं करूँगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत है और उसकी बच्चियां हैं। तो उसकी 3 बेटियां थी, एक की थी उस वक्त में 39 साल उम्र था। गरीबों की बच्ची ऐसी रह जाती, कौन शादी करता, बेचारी की शादी नहीं होती। ये भी इतनी उम्र हो गई थी इसकी भी। कहा एक लड़की है, मैंने कहा जाओ इमाम साहब से कहा मेरा
हवाला देना, पैगाम लेकर के जाओ, शादी और रिश्ते के लिए बात करो। इमाम साहब गए, मेरा हवाला दिया उन्होंने, उस बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए, दुपट्टा फैला गए, दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह तू मौलानाओं का भला करना। सुभान अल्लाह सुभान यार अल्लाह। बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। बेशक दुआएं लेने जैसे काम तो करो, बेशक अर्श आज़म हिला देती हो। बेशक। अब जब कहा कि हाँ, वो लड़का का लड़के से बोली, मेरे पास तो इतना भी नहीं है, मैं तुझे एक कप चाय पिला दूं, तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूँ। बेशक। कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा करांगा, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से होगा। बेशक। मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा था। बेशक। मैंने तारीख दे दी, मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे में छुट्टी होती थी मदरसे से। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाए मैं पढ़ाऊँ, लेकिन मैं गया तो मुझसे बड़ा बात है, नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। बेशक। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 साली है, बहनों की तरह है, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरा लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे एक मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे वो भी रिश्ते आ गए। बेशक। बारात हो गई, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी पेट से। सुभान अल्लाह। मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे की उम्मीद दे दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया। अल्लाह। अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहूं। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए, तो उसकी बीवी को यार रो दी, उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। कहा मौला, एक गरीब परिवार को पालने वाला है अल्लाह, क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफा। कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। बोली जब शिफा है तो मेरी बात करा। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत, मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का एक एक कतरा पेश कर दूंगी। यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। अल्लाह सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले, तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के ये बीमारी हो, 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, शिफा देगा 3 या 4 महीने में। अब जरा मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ ये आयत पढ़ी जाएगी। अगर दवा चल रही हो तो दवा पे भी फूंका जाएगा, पानी पे दम करके पिलाया जाएगा। जख्मिया कैंसर कहीं ऐसी जगह है जहां फूंका जा सकता है, बाहर है तो उस पे भी दम किया
वरना कहीं दूर है तो दुआ कर दो। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। अब वो लड़की बोली हुजूर कब पढ़ूं, मुझे पता नहीं था ये उम्मीद से। मैंने कहा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ना और तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना। रमजान के बाद की बात है। अब वो लड़की पढ़ती रही, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, लड़की सूख के कांटा हो गई बेचारी। एक तो इस हालात में तुम जानते ही हो, आपको पता ही हो ना खाना अच्छा लगता ना पानी, पलटियां इतनी होती हैं बेचारी से, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, कमजोर हो गई। अब वो कह रहा हूं मेरी बीवी तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब मुहर्रम का महीना आ गया, उधर 7वां 8वां महीना उसको भी हो गया, बच्चे की उम्मीद को हो गया। अब वो लड़की रोजाना पढ़ रही है, दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन पाक का सदका दे दे, मेरे शौहर को करबला वालों का सदका दे दे, मेरे शौहर को पंजतन पाक का सदका दे दे, ताकि मेरे बच्चों को शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह वो लड़की रात को पढ़ती रही, लेकिन अब जरा सुनो, तब कमजोर हो गई बेचारी को, चक्कर आने लगा। 8वां महीना वैसे ही हो गया। इस वक्त में उस लड़की की क्या हालत बनेगी। अब वो लड़की थक गई, बैठ के पढ़ रही है, कुरान उधर सामने रखा है, इधर लड़की जो थी दीवार से टेक लगा लेती है। जैसे ही टेक लगाई आंखों में नींद आ जाती है, और जब नींद आई, हल्की सी नींद आई, तो इसने आवाज सुनी कि मेरे मोढ़े पे किसी ने हाथ रखा, और एक आवाज आई, कहा ओ खातून उठ जा, अरे जा मेरे बच्चों का सदका मिल गया। उस लड़की की आंख खुली तो वो कहने लगी, जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख खुली, कुरान पाक से हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे जब फोकस लगा, मेरे चेहरे पे पड़ी, वो लड़की बोली मेरी नींद भाग गई। मैंने सर को हिलाया, मैंने देखा तो लाइट कुरान से निकल रही है, हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे पड़ने के बाद सीधी मेरे शौहर के कमरे में वो लाइट गई, और मेरे शौहर के सर से लेके पांव तक वो लाइट उतर गई। वो लड़की बोली मैं थक ज्यादा गई थी, मगर फिर मेरी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी फिर आवाज आ गई, अरे उठ जा उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात। गरीब की बच्ची थी, बेटी थी वो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की उठी, उसने जब आवाज सुनी सीधी आई और शौहर के ऊपर गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए। शौहर ये समझा ना, शौहर क्या समझा, तवज्जो समझ में आ रही है, बोलूं और खत्म कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शौहर क्या समझा ना, बेचारी का 8वां महीना और कमजोर हो गई है, इसका दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है। अल्लाह बरकतें फरमाए, इसलिए ये बातें ऐसी बोल रही है। शौहर ने पानी पिलाया, कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमें ठीक हो गया, ठीक। फजर की नमाज पढ़ी, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, 7-8 बज गए, कहा सरताज तुम ठीक हो गए, जाओ तुम अपना चेकअप करा के आओ।
کہا یار بیوی تک کہا جاؤ تو میرا کہنا مان لو. میں کہہ رہی آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا, بس آج کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ میرے سرتاج, چلے جاؤ, کیونکہ میں نے سن لیا. اللہ, بیوی اتنی خوشامد کر, بیوی رو دی, آنکھوں میں آنسو آ. کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے یار, اگر غریب کی بیٹی کرو گے تو تمہارا زندگی بھر ساتھ دیکھے گی, اور اگر کار یا اس کے چکر میں رہو گے نا تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج چلے جاؤ. شوہر نے سوچا چلو چیک اپ کرا لیتا ہوں. کہا بیوی اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی دے دیتا. مجھے اتنے پیار کرنے والی بیوی ملی, ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا. کاٹھی کے شوہر نے گاڑی اٹھائی, جیوی پن چلا گیا. اس نے جب چیک اپ کرایا تو ایک رپورٹ نارمل, مگر شوہر کے جب جا گیا تھا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہی تھی, کہہ رہی تھی اللہ تو میری لاج رکھ لینا. شوہر دکھنا بند ہو گیا. اس نے بیچاری نے رات بھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا. اللہ, کمزور ہو گئی تھی, 8واں مہینہ ویسے ہی تھا, گری پڑی تھی. اسے کھانا یاد نہیں آیا, سیدہ فاطمہ یاد آ گئی. نل پہ گئی وضو بنا کر کے, اسے سیدہ فاطمہ کا قول یاد آ گیا, اگر کوئی لڑکی سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے سیدہ فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اب وہ لڑکی وضو بنا کر کے آئی, جیسے ہی وضو بنا کر کے آتی ہے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا, کھولا, اور کھولنے کے بعد سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ لی. اب وہ لڑکی کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگی, قرآن سامنے رکھا ہوا, ادھر دعا چل رہی ہے. اس لڑکی اتنا روئی, دل پہ لوٹ پڑ گیا, اسے چکر آ گیا. لڑکی بیچاری گر جاتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, خون بہ بہ کے گردن میں آ کے جم جاتا. لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے, دوپٹہ کہیں پڑا ہے, قرآن کھلا رہ گیا. اس غریب بچی کا کوئی نہیں ہے, بیچاری اکیلی پڑی ہے, بے ہوش پڑی ہے, دوپٹہ کہیں ہے, ہاتھ کہیں, پاؤں کہیں, بے ہوش انسان کیسے پڑا ہوگا. مکی بھی نک رہی ہے, کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دے اس غریب بچی کو جس نے نہ رات پر کچھ کھایا تھا, اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے, بے ہوش پڑی ہے, مگر رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. قرآن کھلا رہ گیا, صبح سے دوپہر ہو گیا, ادھر شوہر چیک اپ کرا رہا, جو بھی کرائے تو نارمل آ رہا, جو بھی کرائے تو نارمل آ گیا. 4 بجے تک سارے چیک اپ کرا لیے مگر نارمل ہے. بیوی صبح سے لے کے 4 بجے تک گھر میں بے ہوش پڑی ہے. اللہ, اللہ, ایسی بھی لڑکیاں ہیں یار. تم کیا سمجھتے ہو سب کی بیویاں غلط ہیں؟ نہیں پیارے, بعض ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتی ہے, بے شک, اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے, اپنے بھائی سے لڑ جاتی ہے, اپنے چچا تاؤ سے لڑ جاتی ہے, اپنے خاندان والوں سے لڑ جاتی. کہتی ہے ماں میرے شوہر کو کچھ مت کہنا. مگر جب تم گالیاں بکو گے اپنی بیوی کو تو بتاؤ کون بیوی کا دل تم سے, کون اپنے بھائی سے تمہاری خاطر لڑ سکتی. شراب پی کے اگر اسے طلاق دو گے تو کیا بنے گا, گھر میں آ کر کے جوتا چپل پھینکو گے تو کیا بنے گا. اللہ 4 بج گئے. بے شک. اب
जब पता चल गया कि बिल्कुल ठीक, डॉक्टर बोले ये बताओ अभी तो 2-3 महीने पहले आखिरी स्टेज था, किसने तुम्हारा इलाज किया? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। डॉक्टर है, सर्जन है, कौन है? कहा कैसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रखा। नहीं वो नहीं। कहा 1 हफ्ते में MBBS है, MD है या क्या क्या, बहुत गरीब की बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया है। उसने अपनी जेबें देखी ना तो 40,000 रुपए निकले। 40,000 का सबका सोना खरीद लिया उसने। उस वक्त में उसने अपनी बीवी का हार बनवा लिया। हार बनवाने के बाद जैसे ही हार बनवाया अपनी बीवी का, अब वो शौहर घर को चला। अब बेचारी बीवी को पता नहीं, बीवी को पता नहीं, बेचारी बेहोश पड़ी। बातें मत करो बेटा, जाना तो जल्दी जाओ, जाओ जाओ ना, जाओ तुम्हें जहां भेजा जा रहा है जाओ ना, बड़ों का कहना मानो। हाँ इन्होंने भी कसम ही खा ली, लेकिन तवज्जो रखो, तुम ही चले जाओ, इनको छोड़ो तुम ही चले जाओ। जब ये नहीं मानना अब बड़ों को ही कहना मानना पड़ेगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ जी। अल्लाह उधर जो थे पूरा चेकअप कराया, उसने अपनी बीवी के लिए हार खरीद लिया। बात मत करो बेटा, जाना तो जल्दी चले जाओ। हाँ हाँ जल्दी जाओ। तवज्जो रखो, मैं भी खत्म करने के मूड में हूँ। इशारा करें ना कमेटी वाले, दूसरे मुकर्रिर साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, हजरत को बुलाओ। अच्छी बात, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जल्दी छूट जाऊँ। अब वो लड़की उसका वो आ गया, अब घर में आया तो खुशी के मारे ठिकान नहीं। उसने नाम रख दिया था अपना कनीज़े फातिमा। क्या नाम रखा था? कनीज़े फातिमा। पहले उसका नाम पता नहीं क्या था, निकाह के टाइम कनीज़े फातिमा। अब जब कनीज़े फातिमा रखा, आवाज कहा कनीज़े फातिमा। अब कनीज़ कहीं दिखाई नहीं दे, वो बीवी बेहोश पड़ी। क्या पता था बेचारी अंदर कमरे में जहाँ कुरान शरीफ रखा रहता था नमाज पढ़ती थी। अब उसने इधर देखा बीबी नहीं है, इधर देखा बीबी नहीं है, अल्लाह जाने कहा घर से तो बाहर नहीं निकलती थी। जब कमरे में आकर के देखा तो बीबी बेहोश पड़ी है। अल्लाह, अब बीबी बेहोश, कुरान खुला पड़ा। उसने पहले तो कुरान को चूमा और कुरान को उठा के रख दिया और बीबी के हाथ पांव संभाले और बीबी को गोद में लेकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, कही अल्लाह इसने मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। कौन था इस पे जिसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? समझा कि पता नहीं किसी ने लठ मार दिया, पत्थर मार दिया, कैसे सर फूटा। अब वो लड़का इतना रो रहा, बीबी को गोद में लिए रो रहा, दुआएं कर रहे अल्लाह मेरी बीबी को होश में ला दे, कपड़े संभाल दे। कपड़े संभाल दिए उसने, आंखों से आंसू गिरे, बीबी के गाल पे गिरा, बीबी की आंख खुल जाती है, बीबी होश में आ जाती है। जब देखा मैं किसी की बाहों में हूँ, एकदम फड़क के पीछे को हट गई और कांपने लगी, थर्रा गई।
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बीबी कहने लगी मेरे सरताज, मेरा दिल खुश करने के लिए तो नहीं कह रहा, कहा देखो ये रिपोर्ट देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल। कहा मेरे सरताज बस मुझे 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, 2 मिनट के लिए मेरी बाहें खोल दो। उसने, शौहर ने अपने हाथ खोल दिए, बीबी ने अपना दुपट्टा चादर ओढ़ी, सीधी नल पे गई, खून धोया, जख्म में से खून नहीं निकल रहा था क्योंकि जम गया था। वो सब साफ करने के बाद उसने वुजू बनाया और अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के 4 रकात नफल पढ़ लेती है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है शुक्र का, और कहती है अल्लाह तूने मेरी सुन ली। बेशक आज की कौन सी ऐसी बहन है अगर इन्हें एक जोड़ी कपड़े न मिले ना तो हंगामा कर देती है, हंगामा। अगर भाई की शादी हो ना, हंसने की बात नहीं, भाई की शादी हो कम से कम 3 से 5 जोड़ी कपड़े बनाएगी, और अगर कम रह गए तो पूरी ससुराल में ना शौहर को कुत्ते से ज्यादा जलील कर देती है। सच्चाई है। इतना उड़ा देती है कि कुछ कमाता नहीं, पड़ा रहता, नंगा है, निठल्ला है, निकम्मा है, और जने कौन कौन सा है। मगर उसको जरा देखो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, सजदे में है। अब आए अपने शौहर को आगे चिपट गई और पेशानी को चूम लिया। जैसे चूमा, क्या मेरी बीवी, आज अगर मेरे पास न मुझे ये पता होता तो जितने तिजोरी में पैसे सारे लेके जाता और तुम्हारे लिए तोहफा लाता, मगर मेरी जेब में जितना था ना 40,000, एक चवन्नी भी मैंने नहीं बचाई है, सबका ये तुम्हारे लिए हार लेके आया। उसने अपने हाथ से अपनी बीबी को सोने का हार पहनाया। पहनाने के बाद कहा तुम खुश हो? कहा मेरे सरताज मैं इसकी मालिक हूँ। कहा मैंने तुम्हें दिया, तुम इसकी मालिक हो। इसने अपना वो उतारा हार और अपने शौहर का हाथ रखवाया, और रखवाने के बाद कहा मैं अपने शौहर की जान का सदका अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरताज जाओ, फुला जगह गरीब बच्ची की शादी होने वाली है, जाओ उसकी बच्ची की शादी में पेश कर देना। सुभान अल्लाह। कहा मैं अपने शौहर की जान का सदका अदा कर रही हूँ। अल्लाह कैसी बीवी थी, ये बोलोरो लेके नहीं आई, ये बुलेट लेके नहीं आई, ये जहेज लेके नहीं आई, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका लेके आई। आज के बाद मेरी बात समझ रहे होगे जी, या नहीं समझो? बात समझ के होगे। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियां बीबी रहते रहे, आज की डेट में 3 बच्चे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कैसा रहमान रहीम करीम, कैसे बदल देता है। अगर तुमने भी ना, नौजवानों, अगर तुमने ये तैयारी कर ली, पहले तो सबसे पहले तुम लड़की को देखो, उसका दीन, उसका मजहब, सुन्नी है कि नहीं है, क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद अगर दौलत भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही बात? हसब नसब और उसका दीन देखना। क्या देखना बोलो? दीन देखना। हाँ, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी लड़की को क्या नहीं दूं? अगर कोई अपनी लड़की को कार दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से ले लो, लेना जायज है। कोई बुलेट दे रहा तो ले लो। मैं मांगने वालों की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा था? मांगने वालों से। मैं नहीं चाहूंगा यार मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, आप नहीं चाहोगे अपनी बेटी को क्या नहीं दूं। समझे? हमारे उस्ताज़े मोहतरम बहुत जय्यद आलिम, इलाके में टॉप के इतने बड़े अदीब जिनसे मैं पढ़ा हूँ, हजरत अल्लाह मौला इसहाक साहब, उनके घर में हजरत की शहजादी है, तो वो मेरी माँ होगी, इसलिए हजरत मेरे नाना हो गए। सुभान अल्लाह। बहुत जय्यद आप आलिम भी हैं, मुफ्ती भी, बहुत परहेजगार। ऐसे कम लोग मिलते हैं इस दौर में। अगर कोई मुरीद अगर नहीं हुआ ना तो हो जाना, समझे? मौका है, अच्छा मौका, हाथ से ये जाने मत देना, वरना ढचोकले वाले ज्यादा मिलेंगे जो औरतों से पाँव भी दबा रहे हैं और गला भी दबा रहे हैं। अब नारा लगाओ, देखो मुफ्ती साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी नारे तकबीर नारे रिसालत एक मर्तबा फिर लगा लीजिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत फौरन बैठ जाओ, फौरन फौरन बैठो, फौरन 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 बैठ जाइए। टाइम क्या हो गया? टाइम 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 ऊपर बैठ जाओ, अच्छा अच्छा हाँ 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 बेटा भाई मेरे बैठ हेलो बैठ जाइए, फौरन बैठिए, फौरन बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे सीधी हो गई होंगी अब। बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे सीधी हो गई अब तक। चाचा आगे आ जाओ या बैठ जाओ, बैठ जाओ, फौरन बैठ जाइए। मैंने बताया था ना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ले आए, मेरे फौरन बाद जैसे नाज़िम साहब पेश करेंगे इंशाअल्लाह खिताब होगा फौरन। उस कोने में से छट के फिर वो पहुंच गया, कुछ भाई पीछे को देखो देखो वो छोटी छोटी भेड़ें पहुंच गई। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, समझे? बात चल रही थी, एक बात और बता दूं और खत्म। जी बिल्कुल, सिग्नल मिल गया। मैंने बताया ना जब तक हजरत आएंगे तब तक बोलूंगा। यार एक चीज और मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, तवज्जो से सुनो बेटा। ओ बच्चों, लोग तो बहुत बहुत बुरे हैं और बहुत बहुत अच्छे भी हैं, मगर बड़ा बड़ा करतूत करने वाला, काले धंधे करने वाला, कारनामे करने वाला सब नजरों में है, मगर एक बंदा वो लाऊं निकाल के, यार उसके बारे में सोचियो कि वो कितना बुरा होगा। किसके बारे में बताऊं? जी बहनें बैठी हैं, इशारों में समझियो। वो शख्स, चलो सेल्फी ले लियो तो अब रहने दो। चला वो शख्स जो बता रहा था, ये सुनो जी यार, उसके बारे में सोचना, थोड़ी देर गौर करना, कितना बुरा शख्स होगा, बड़े बड़े करतूत करने वाला। चौकीदार साहब सुन रहे हो? हाँ, बड़े बड़े करतूत करने वाला, मगर वो शख्स जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले। अल्लाह मैंने बताया ना, डीसीएम मंगा के और दाखला कराने ले जाऊंगा। चुप जाओ। वो शख्स कितना बुरा होगा, जरा उसके बारे में सोचो, जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले। अल्लाह जो अपनी माँ पे गलत हरकत से नजर डाले, मतलब गलत हरकत करने के लिए। अल्लाह उससे भी क्या जलील कोई हो सकता है? नहीं, कितना गंदे जहन का, कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे। मगर आज हदीस इसलिए अवाम पे उतार रहा हूं मैं, ये 5% लोग ऐसे हैं। कितने लोग बोलो? 5%। 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ पे गलत नजर डालना। जैसे मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नहीं, बोलो, आका की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती।
नबी फरमाते हैं जरा तो सुनो, तवज्जो करो, गौर करो हदीस शरीफ। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। इस्लाह माशरा ना जी, एक चीज निकाल के इसलिए पेश कर रहा हूं, एक चीज। सूद और ब्याज, इधर इलाके में कमेटी बहुत चलती है। कमेटी का मतलब है 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए डाले। अब उसकी बोली लग रही है 90 पे कोई उठा रहा, 80 पे कोई उठा रहा, 85 को, ये भी नाजायज हराम। हाँ, अगर 10 लोग इकट्ठे हो गए और पूरे 1 लाख रुपए अगर उसका काम बन रहा है उसे दे दो, कमो बेशी साथ उसका काम बन रहा है उसे दे दो, दूसरे महीने उसे दे दो, ये जायज है। समझ में आ रही बात? मगर सूद और ब्याज जो फसल के मौके पर 10,000 दे दिए, 12 लेता है, 15 दे दिए, 18 लेता है, शादी के मौके पर 50,000 दिए, फसल में 60 ले लेता है। सूद और ब्याज का खाने वालों, सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज पे रुपया और पैसा देने वालों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं आका से जरा पूछो। हदीस में आता है, आका फरमाते हैं सूद और ब्याज जो होता है उसका गुनाह ऐसा होता है कि सूद और ब्याज के गुनाह के 70 दर्जे होते हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, यानी बड़ा वाला भी नहीं, बीच वाला भी नहीं, सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है उसका गुनाह और पाप ऐसा होता है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह। है कोई माइकल अल जो हदीस को झुटला? नहीं। आज कितने लोग खा रहे हैं, कभी सोचा? और एक हदीस में तो आया, मन अकला दिरहमम मिनर रिबा, जिसने सूद का 1 रुपया भी खाया, दिरहम का तर्जुमा में करें उस दौर में रुपया, 1 रुपया भी खाया, मालूम है मिन सलासियों व सलासीना ज़निया, 33 मर्तबा जिना करने के बराबर है। अल्लाह। कभी सोचा है? सट्टे पे सट्टा मार रहा, ताश से जुआ खेल लिया, लूडो से जुआ खेल रहा, मोबाइल पे जुआ खेल रहा, क्रिकेट पे जुआ खेल रहा। कभी सोचा? छोटी छोटी बात पे हार जीत रख लेता है, छोटी छोटी बात पे। प्यारो एक एक लुक्मे को देखना होगा, एक एक दाने को देखना होगा। अगर हमारे हल्क से एक लुक्मा भी उतर गया, लुक्मा उतर गया, 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। कभी सोचा इसके बारे में? बस आखिरी बात बताऊं और खत्म। वो शख्स कितना बुरा होगा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे। अल्लाह की लानत अगर किसी पे बरस जाए तो उसका ठिकाना होगा? कोई तुम्हारे गांव में है ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे? मैं बताता हूं, कुरान पढ़ा करो। आज ना इशारे पे यार हर आदमी झूठ बोल देता है, हर आदमी झूठ। और अब तो ये जो मोबाइल है ना, ये भी झूठ की मशीन है। तो तुम रहे मौलाना लोगों को भी बर्बाद कर दिया ऐसे। कहां पहुंचे हजरत? है रामपुर में और कह रहा दलपतपुर पहुंच गया। ये क्या सच है? ये भी झूठ है। कहां? खेत पे है तो दुकान पे बता रहा, दुकान पे तो खेत पे बता रहा। सबसे बड़ा बच्चे ने घर से निकल के गए, बच्चे ने दावत, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। मिठाई? कितना बड़ा झूठा, मिठाई लेने जा रहे हैं। अम्मा, अगर पहले बच्चा रोता था, समझ में आ रही बात?
سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ الم نشرح لک صدرک تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی۔ مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہہ چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا، میرا جھوٹ پھینک رہی ہے۔ اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو پھر دیکھ۔ کہتے کیا نا یار پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کی لعنت برسے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا ہوں، اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ کیا کرنا؟ بولو زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، ایک زبان، ایک شرم کا۔ اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اور آج کے تم نے جو خطیب بلائے نا وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے، میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، سمجھے؟ اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب، شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ میں، آپ بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔